یہ قصہ ہے بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا، جہاں زیادہ تر محنت کش مزدور رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک موسیٰ نامی غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی مسلسل محنت و مشقت سے بھری پڑی تھی، مگر پھر بھی اس کے پاس اتنا نہ ہوتا کہ وہ پیٹ بھر کر 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ وہ سارا دن بازار میں محنت مزدوری کرتا، کبھی کسی کا بوجھ اٹھاتا تو کبھی کسی کی صفائی کرتا، لیکن جتنی بھی محنت کرتا اس کی اجرت صرف اتنی ہوتی کہ بمشکل اس کا گزارا ہو پاتا۔ مگر موسیٰ کی ایک عادت ایسی تھی جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ وہ ہر رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا۔ رات کی تنہائی میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے، موسیٰ آسمان کی طرف دیکھ کر آنسو بہاتا اور اللہ سے کہتا، یا اللہ مجھے اتنی روزی عطا کر دے کہ میں چین سے زندگی گزار سکوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لا سکوں۔ وہ ہر رات یہی دعا کرتا اور صبح اٹھتے ہی مزدوری میں جٹ جاتا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ غربت کا وہی عالم رہا۔ اب موسیٰ کے دل میں ایک عجیب بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کی دعائیں نہیں سنی جا رہی، اللہ اس کی فریاد نہیں سن رہا۔ آخر کب تک وہ اسی حال میں زندگی گزارتا رہے گا؟ یہ سوالات اس کے دل میں طوفان برپا کر رہے تھے، لیکن اس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ ایک دن موسیٰ حسب معمول بازار کے اسی کونے میں جا بیٹھا جہاں مزدور کام کے انتظار میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں کچھ کسان اپنے کھیتوں کے لیے مزدور تلاش کر رہے تھے، کچھ تاجر اپنا سامان منڈی تک پہنچانے کے لیے مزدوروں کی خدمات لے رہے تھے۔ ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق مزدور مل رہے تھے، لیکن آج موسیٰ کے نصیب میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے ارد گرد دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ کل رات کی دعا اب بھی اس کی ذہن میں گونج رہی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے دولت نہیں دے سکتا تو کم از کم میری تقدیر ہی بدل دے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی اس کی دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں، شاید اللہ اس کی فریاد نہیں سنتا۔ اسی دوران اچانک بازار میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا جو موسیٰ کی زندگی کا ایک نیا سبق ثابت ہونے والا تھا۔ بازار میں اچانک ایک گھڑ سوار شخص تیزی سے داخل ہوا۔ اس کا چہرہ فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا، کیا یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایماندار ہو، مضبوط ہو اور جسے فوری طور پر کام درکار ہو؟ یہ سن کر وہاں بیٹھے کئی مزدوروں نے فوراً ہاتھ بلند کر دیے، مگر گھڑ سوار کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھٹکی اور پھر سیدھا موسیٰ کی طرف جا رکی۔ اس نے غور سے موسیٰ کا جائزہ لیا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ موسیٰ نے مؤدب لہجے میں جواب دیا، جناب میرا نام موسیٰ ہے اور میں ایک محنتی مزدور ہوں، اگر آپ کو کوئی کام درکار ہے تو میں حاضر ہوں۔ گھڑ سوار نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، مجھے ایک خاص آدمی کی تلاش ہے اور شاید وہ تم ہی ہو۔ اگر تم واقعی ایماندار اور محنتی ہو تو میں تمہیں ایک بڑا کام دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا کام ہے جناب؟ گھڑ سوار نے نظریں گھما کر بازار میں پھیلی بھیڑ کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ عام مزدوری جیسا کام نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ ایک طویل سفر پر جانا ہوگا اور ایک اہم خفیہ کام کرنا ہوگا۔ اگر کامیاب رہے، اگر ہمیں اس کام میں کامیابی ملی تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی، لیکن اگر ناکام ہوئے تو شاید تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ موسیٰ کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ عام مزدوروں کی طرح بازار میں بیٹھ کر کام تلاش کرتا تھا، آج اچانک ایک انجان سفر پر جانے کی بات ہو رہی تھی۔ موسیٰ کے دل میں سوال اٹھنے لگے، کیا یہ میری دعا کا جواب ہے؟ کیا اللہ نے میری تقدیر بدلنے کے لیے مجھے کسی آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا، جناب میں تیار ہوں، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا اور کہاں جانا ہوگا؟ گھڑ سوار نے گہری سانس لے کر کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں جہاں تمہاری قسمت انتظار کر رہی ہے۔ موسیٰ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس بات کا یقین تھا کہ یہ موقع اللہ کی طرف سے ملا ہے اور وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک گلی میں داخل ہوئے۔ موسیٰ تیز قدموں سے چل رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانی حویلی کے دروازے پر پہنچے جس پر لکڑی کے نفیس نقش و نگار تھے۔ گھڑ سوار نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا درویش نمودار ہوا۔ اس کی سفید داڑھی، پر نور چہرہ اور سادہ لباس دیکھ کر موسیٰ حیران رہ گیا۔ گھڑ سوار نے درویش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ آدمی۔ درویش نے موسیٰ کی طرف غور سے دیکھا، جیسے اس کے دل کا حال پڑھ رہا ہو۔
मूसा ने नासमझी के आलम में एक नजर घुड़सवार पर डाली, फिर दरवेश की तरफ देखने लगा। घुड़सवार ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, यही वो शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी। मूसा की उलझन बढ़ती जा रही थी। वो उन लोगों को नहीं जानता था, ना ये ही समझ पा रहा था कि वो उससे क्या चाहते हैं। उसने अदब से कहा, मालिक, अगर आपको मुझसे कोई खिदमत दरकार है तो जल्दी से बताएं। मैं एक आम मजदूर हूँ, लेकिन ईमानदारी से हर काम करने के लिए तैयार हूँ। दरवेश ने गहरी सांस ली और नरमी से बोला, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मूसा की पेशानी पर बल पड़ गए। वो परेशानी से बोला, नहीं हजरत, मैं तो बस काम की तलाश में था और ये साहब मुझे यहाँ ले आए हैं। दरवेश मुस्कुराए। बेटा, तुमने अपनी तकदीर बदलने की दुआ की थी। तुमने अल्लाह से फरियाद की थी कि वह तुम्हें दौलत अता करे और कामयाब करे। मूसा का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। हैरत से बोला, जी, मगर आपको कैसे मालूम? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और नरमी से कहा, क्योंकि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। मगर याद रखो, अल्लाह का तरीका मुख्तलिफ होता है। जो चीज़ तुम्हें बगैर मेहनत के मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो चीज़ आजमाइश के बाद मिले वो हमेशा के लिए तुम्हारी होती है। मूसा खामोशी से खड़ा ये अल्फाज जज्ब कर रहा था कि दरवेश ने आगे बढ़कर एक बारी थैली उसके हाथ में थमा दी। मूसा ने हैरत से उसे थामा। मूसा का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। थैली का वजन वाज़िया कर रहा था कि इसमें सोने के सिक्के मौजूद हैं। मूसा ने हैरत से दरवेश की तरफ देखा। ये तुम्हारी आजमाइश है। दरवेश ने संजीदगी से कहा, अगर तुमने इस रकम को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तुम्हें मजीद अता करेगा, लेकिन अगर तुमने इसे ज़ाया किया या गलत रास्ते में खर्च किया तो ये सब कुछ तुमसे वापस ले लिया जाएगा। मूसा के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली थी, जो उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी। यही वो दौलत थी जिसके लिए वो रातों को अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगता था। मगर अब ये एक आजमाइश के तौर पर उसके हाथ में रखी जा चुकी थी। क्या मैं वाकई इस दौलत का हकदार हूँ? मूसा ने दिल में सोचा। वो जो कल तक एक आम मजदूर था, आज उसके पास इतनी दौलत थी कि वह सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। दरवेश ने उसकी आंखों में उभरती कश्मकश को महसूस कर लिया और नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो उसके साथ आजमाता भी है। ये दौलत तुम्हारे पास एक इम्तहान के तौर पर आई है। अब ये तुम पर है कि तुम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हो। मूसा ने सर झुकाकर कहा, हजरत, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस दौलत को फजूल खर्ची में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि इसे किसी अच्छे काम में लगाऊंगा। दरवेश मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में एक गहरी हिकमत झलक रही थी, जैसे वो जानता हो कि आजमाइश का असल वक्त अभी आया नहीं है। मूसा उस दौलत को लेकर सीधा बाजार पहुंचा। कल तक जो लोग उसे मजदूरी के इंतजार में बैठा देखते थे, आज हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। वो अब आम मजदूरों की तरह नहीं लग रहा था। उसके अंदाज में एक अजीब सी खुद एतमादी झलक रही थी। वो बाजार के सबसे बड़े कपड़े के ताजर के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मुझे बेहतरीन कपड़े चाहिए। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे लिबास पहनना चाहता हूँ। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, अभी कुछ दिन पहले तो तुम एक आम मजदूर थे, आज तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? मूसा ने नरमी से जवाब दिया, ये मेरी किस्मत का फैसला है। अल्लाह ने मुझे नवाजा है। दुकानदार ने कीमती कपड़े निकालकर उसके सामने रख दिए और मूसा ने चमकदार रेशमी लिबास खरीद लिए। ये पहला लम्हा था जब दौलत ने उस पर अपना असर दिखाना शुरू किया। कपड़े खरीदने के बाद जब वो बाजार में निकला तो हर कोई हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वही मूसा जो कल तक एक आम मजदूर था, आज एक मुअज्जज आदमी लग रहा था। इसी दौरान एक ताजर उसके पास आया और बोला, मूसा भाई, लगता है तुम्हारे दिन बदल गए हैं। आओ हमारे साथ बैठो, हमें अपनी कहानी सुनाओ। वही ताजर जो पहले उसे अपनी महफिल में जगह नहीं देते थे, आज खुशी खिलाकी से उसका इस्तकबाल कर रहे थे। मूसा को एक शानो शौकत वाली निशिस्त पर बिठाया गया था। उसके आगे कीमती खाने रखे गए और हर कोई उससे इज्जत और मोहब्बत से पेश आ रहा था। क्या दौलत वाकई इंसान को इज्जत देती है? मूसा ने दिल में सोचा, क्या ये वही लोग नहीं जो कल तक मुझे नजरअंदाज करते थे? मूसा की आंखों में चमक थी। यही तो वो चाहता था, एक कामयाब जिंदगी, इज्जत और दौलत। वो जो कल तक बाजार में मजदूरी के इंतजार में बैठा रहता था, आज उसके पास वो सब कुछ था जिसका वो ख्वाब देखता था। एक गरीब मजदूर से अचानक एक मालदार शख्स बन जाना उसके लिए हैरानकुन था। उसे लगा ये मौका अल्लाह की तरफ से दिया गया है और उसे इसका सही इस्तेमाल करना होगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि दौलत का असल इम्तहान कैसे होता है। इसी दौरान बाजार का एक चालाक सौदागर मूसा के करीब आया और बोला, मूसा भाई, अगर तुम वाकई दौलतमंद बनना चाहते हो तो ये दौलत यूं जाया ना करो। दौलत अगर सही तरीके से ना बढ़ाई जाए तो वो खत्म हो जाती है।
मगर जो शख्स इसे अक्ल से इस्तेमाल करता है वो हमेशा अमीर रहता है। फिर वो राजदाराना लहजे में बोला, मैं तुम्हें ऐसा कारोबार करवा सकता हूँ जिससे तुम्हारी दौलत बहुत वसी हो जाएगी। मूसा, जो हमेशा अपनी किस्मत के बदलने का ख्वाब देखता था, सुदागर की बातों में आ गया। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो कोई कारोबार का तजर्बा नहीं है। सुदागर कहका लगाकर बोला, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अपनी दौलत मेरे हवाले कर दो। मैं इसे बेहतरीन कारोबार में लगा दूंगा और चंद ही दिनों में तुम्हारी दौलत दुगनी हो जाएगी। मूसा को यह बात बहुत माकूल लगी। आखिरकार वो भी एक आम मजदूर से कामयाब ताजर बनने के ख्वाब देख रहा था। उसने दरवेश की नसीहत को भी याद रखा कि अगर वो दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह उसे और नवाजेगा। मगर वो ये भूल चुका था कि दौलत के साथ आजमाइश भी होती है। बगैर ज्यादा सोचे मूसा ने अपनी आधी दौलत सुदागर के हवाले कर दी और उससे कहा, यह तुम्हारे पास अमानत है। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे बहुत कुछ हासिल करूंगा। सुदागर मुस्कुराकर सोने से भरी थैली ले गया और बोला, फिक्र मत करो, चंद दिनों में तुम्हें ऐसा मुनाफा मिलेगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मूसा मुतमईन था। उसे लगा जैसे उसने किस्मत का सबसे बेहतरीन फैसला कर लिया हो। मगर फिर कुछ दिन गुजर गए। मूसा रोज बाजार जाता और सुदागर का इंतजार करता कि वो आकर उसे मुनाफा देगा, लेकिन सुदागर उसे कहीं नजर नहीं आता था। मूसा जब उसकी दुकान पर गया तो उसे हर बार यही जवाब मिला, सुदागर आज मौजूद नहीं है, कल आना। ये सुनकर मूसा को परेशानी होने लगी, मगर वो खुद को तसल्ली देता रहा कि शायद कारोबार में वक्त लगता है और जल्द ही वो मुनाफा हासिल कर लेगा। एक दिन जब वो दोबारा सुदागर की तलाश में निकला तो पता चला कि वो शख्स बाजार से बिल्कुल गायब हो चुका है। ना उसकी कोई दुकान बाकी थी, ना सामान, और ना ही उसका कोई सुराग कि वो कहाँ चला गया। ये खबर सुनते ही मूसा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आधी दौलत एक धोखेबाज के हाथों लुट चुकी थी। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे दरवेश की वो बात याद आ गई, अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो उसे आजमाता भी है। अगर दौलत का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो वापस ले ली जाती है। ये सोचकर मूसा के अंदर घबराहट फैल गई। क्या मैं वाकई आजमाइश में नाकाम हो गया? मैंने अपनी दौलत गलत शख्स के हवाले कर दी। उसकी आंखों में आंसू बार आए। अगर वो पहले की तरह एक आम मजदूर ही रहता तो कम से कम इज्जत की रोटी तो उसके पास होती। मगर अब वो खुद को एक बेवकूफ आदमी समझने लगा था। मूसा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, मगर अब उसके पास आधी दौलत ही बाकी थी और वो ये नहीं चाहता था कि वो बाकी की दौलत भी बर्बाद कर दे। वो सीधा दरवेश के पास पहुंचा जो बदस्तूर उसी हवेली में मौजूद था। निदामत भरे लहजे में वो बुजुर्ग से कहने लगा, हजरत, मैंने अपनी दौलत का एक हिस्सा एक गलत आदमी को दे दिया है। वो सब कुछ लेकर भाग गया है। मैं आपकी नसीहत समझने में देर कर बैठा। आप मुझे क्या करना चाहिए? दरवेश ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अगर तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि गलती कहाँ हुई है तो ये समझो कि आजमाइश का पहला दरवाजा पार कर लिया है। लेकिन याद रखो, असल आजमाइश अभी भी बाकी है। अगर बाकी दौलत भी तुमने बगैर सोचे समझे खर्च की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे किसी नेक काम में लगाओगे तो यही दौलत हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। मूसा हैरत से बोला, लेकिन मैं इसे नेकी में कैसे लगा सकता हूँ? मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतनी दौलत कहाँ कि किसी बड़े कारोबार में लगा सकूं। दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा, अल्लाह दौलत से ज्यादा नीयत को देखता है। अगर तुम वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो अपनी दौलत किसी ऐसे काम में खर्च करो जो ना सिर्फ तुम्हारे लिए फायदेमंद हो बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करे। ये सुनकर मूसा गहरी सोच में पड़ गया कि उसके पास जो दौलत बची थी वो उसे कहाँ और कैसे खर्च करे। मगर हर बार दरवेश के अल्फाज मूसा के जहन में गूंजने लगते, अगर तुमने इसे किसी नेक काम में लगाया तो ये हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। अगली सुबह जब वो बाजार पहुंचा तो उसके देखने का अंदाज बदला हुआ था। पहले वो लोगों को हसरत भरी नजरों से देखता था, मगर आज वो उनकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मजदूरों को देखा जो कभी उसके साथ काम करते थे। वो आज भी उसी हाल में थे जैसे पहले थे। फिर उसकी नजर उन फकीर औरतों और यतीम बच्चों पर पड़ी जो बाजार के किनारे बैठे रोटी के एक टुकड़े के लिए भीख मांग रहे थे। मूसा के दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास दौलत है तो क्या मैं इसे सिर्फ अपनी आराम के लिए इस्तेमाल करूं या किसी ऐसे काम में लगाऊं जो दूसरों के भी काम आ सके। ये सोचते हुए उसकी नजर एक नान भाई की दुकान पर जा ठहरी। नान भाई की दुकान पर पहुंचकर मूसा की नजर वहां जमा गरीब लोगों पर पड़ी। कई भूखे लोग चेहरे पर उदासी लिए खड़े थे, जबकि बाज मायूसी की हालत में लौट रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे।
ये मंजर देखकर उसके दिल में एक नई तब्दीली आई। वो नान भाई के पास गया और पूछा, यहाँ जो भी भूखा आता है, अगर उसके पास रोटी खरीदने के पैसे ना हो तो वो क्या करता है? नान भाई ने आह भरी और बोला, जो पैसे नहीं दे सकता वो भूख से निडाल वापस चला जाता है। आज से जिसके पास पैसे ना हो उसे भूख की तकलीफ ना उठानी पड़े। रोज जितनी रोटियां ऐसे लोगों को दोगे तुम उनका हिसाब रखो और मैं रोज आकर वो हिसाब चुका दूंगा। नान भाई ने हैरत से उसकी तरफ देखा और सवाल किया, मगर तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मूसा मुस्कुराकर बोला, ये सौदा मुनाफे के लिए नहीं, नेकी के लिए है। जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है और उसे उसी के बंदों के काम आना चाहिए। ये फैसला उसके लिए एक नई राह का आगाज था। मूसा ने ना सिर्फ भूखे लोगों के खाने का बंदोबस्त किया, बल्कि उसने बहुत से गरीबों की मदद की और यतीमों के लिए लिबास खरीदा। एक दिन मामूल के मुताबिक वो नान भाई की दुकान पर पहुंचा तो वहां एक अजनबी आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो कीमती लिबास में था, मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी झलक रही थी। वो आगे बढ़कर नरम लहजे में बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मूसा ने नफी में सर हिलाया तो वो शख्स आहिस्ता से बोला, मैं वही सुदागर हूँ जिसने तुमसे तुम्हारी दौलत ली थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया और चला गया, मगर जब मैंने सुना कि तुमने अपनी बाकी दौलत नेकी में लगा दी है तो इसी बात ने मुझे वापस ले आने पर मजबूर कर दिया। ये लो तुम्हारी रकम, और इसमें वो भी शामिल है जो मैंने इस रकम से मुनाफा कमाया है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मगर तुमने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। अब मैं ये भी गवाही देता हूँ कि नेकी ही हकीकी सौदा है। मूसा ने उसकी बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने नरमी से कहा, मुझे दौलत नहीं अल्लाह की रजा चाहिए थी और मैं वो हासिल कर चुका हूँ। तुमने जो सीखा वही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये वो लम्हा था जिसने उसे एक हकीकत से आशना कर दिया था। जब वो सिर्फ दौलत का तलबगार था तब उसके दिल में उसकी कोई कदर नहीं थी, मगर जब उसे इसका सही इस्तेमाल मिल गया तो अल्लाह ने उसे उसकी खोई हुई रकम भी लौटा दी और उसको इज्जत भी बख्श दी। कल तक जो मूसा सिर्फ एक आम मजदूर था, आज सब लोग उसे रहमत का सौदागर कहने लगे। जो मूसा कभी अपनी किस्मत को कोसता था वो अब दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बन चुका था। आज लोग उसे रहमत का सौदागर कहने लगे थे। उसे ये समझ आ चुकी थी कि हकीकी दौलत दिरहम और दिनार नहीं है, बल्कि नेकी में है, और जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है अल्लाह उसे बेहिसाब लौटा देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।